Hello friends, welcome. Today we will start our second chapter of subject Principles of Electronics Communication. So this is the Unit 2 AM and FM modulation. So let's start. So first we'll see the competency, that is what competencies that should be developed within you after learning this subject. So maintain basic electronics communication system. So ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को मेंटेन करने की जो कॉम्पिटेंसी है, जो एबिलिटी हो, डेवलप होना जरूरी है. उसके बाद कोर्स आउटकम्स. So what are the different course outcomes? So as we know, there are 5 different chapters, that is units, are available in this subject. So 5 chapters have 5 different course outcome. So we are studying here second chapter, that is AM and FM modulation. So the course outcome of this subject is use relevant modulation techniques for specified applications. So next, need for modulation. So what is modulation? So modulations has a dictionary meaning of to modify or to change. So here in this point, that is point 2.1, we are going to study the definition and the importance of modulation. So here first of all we will see signal transmission. So signal transmission is divided into 2 categories, that is signal can be transmitted in 2 ways. So here signal can be transmitted in 2 ways, that is the baseband and bandpass. So baseband transmission of the signal means we transmit the signal without modulation, and the bandpass transmission means we transmit the signal with modulation. So what is baseband transmission and what is bandpass transmission? So first of all we will see what is the meaning of baseband transmission. So the original information signal is converted into electrical form and transmitted directly. So as we know, in analog communication system, the signal that we have to transmit from transmitter to receiver is first converted into physical form to इलेक्ट्रिकल फॉर्म, इट्स इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल फॉर्म. जो भी सिग्नल हमें ट्रांसमिट करना होता है, वो ऑडियो हो सकता है, लाइट इंटेंसिटी हो सकती है, पिक्चर हो सकते हैं, इमेज हो सकते हैं, वॉट एवर सिग्नल दैट वी हैव टू ट्रांसमिट फ्रॉम transmitted to receiver, that physical signal is first converted into the its equivalent electrical signal, और वो हम करते हैं ट्रांसड्यूसर के जरिए. So transducer converts electrical signal into the transducer converts electrical physical signal into the electrical signal. So that electrical signal is transmitted as it is through the communication channel. That type of transmission is called as baseband transmission. So यहाँ पे जो फिजिकल सिग्नल का जो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल रहता है, वो एज इट इज कम्युनिकेशन मीडियम से ट्रांसमिट करते हैं उसको, उसे कहते हैं बेसबैंड ट्रांसमिशन. सो ये एग्जांपल्स है टेलीफोन नेटवर्क फॉर लोकल कॉल्स, कंप्यूटर डेटा ओवर कोएक्सियल केबल. ये इस टाइप का जो कम्युनिकेशन होता है वो बेसबैंड ट्रांसमिशन होता है. सो बेसबैंड ट्रांसमिशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ ओरिजिनल सिग्नल एज इट इज. जैसे मैंने आपको बताया अभी कि जो सिग्नल हमें ट्रांसमिट करना होता है, उस सिग्नल को हम एज इट इज, जो फिजिकल ट्रांसमिशन का फिजिकल नेचर का जो सिग्नल है, उस सिग्नल को जब हम इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं, तो फिजिकल सिग्नल का जो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसे एज इट इज कम्युनिकेशन मीडियम से ट्रांसमिट करते हैं. उस पर सिर्फ मॉड्यूलेशन और फिल्टरिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करके उसे ट्रांसमिट करते हैं. तो दैट इज कॉल्ड एज बेसबैंड ट्रांसमिशन. सो नेक्स्ट इज बेसबैंड ट्रांसमिशन के लिमिटेशंस. सो व्हाट आर द डिफरेंट लिमिटेशंस ऑफ बेसबैंड ट्रांसमिशन. बेसबैंड ट्रांसमिशन करने से क्या क्या लिमिटेशंस आते हैं. सो इट कैनॉट बी यूज फॉर रेडियो ट्रांसमिशन ड्यू टू लो फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉइस सिग्नल. इट कैनॉट ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू एयर और फ्री स्पेस. जैसा सपोज हमें ऑडियो सिग्नल ट्रांसमिट करना है, तो ऑडियो की जो फ्रीक्वेंसी रहती है तो वो जनरली 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज रहती है, और वो जो ऑडियो दैट इज वॉइस सिग्नल रहता है, वो अगर हमने इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज इतनी ही रहती है. तो ड्यू टू द लो फ्रीक्वेंसी, तो ये जो लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, अगर हमें उसे वायरलेस ट्रांसमिशन उसका करना है, तो उसका वायरलेस ट्रांसमिशन हम नहीं कर सकते क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी कम है. तो कम फ्रीक्वेंसी होने के कारण हम बेसबैंड ट्रांसमिशन का रेडियो कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, रेडियो ट्रांसमिशन नहीं कर सकते. रेडियो ट्रांसमिशन मतलब वायरलेस ट्रांसमिशन. सो वायरलेस ट्रांसमिशन जो फ्री स्पेस से होता है या एयर मीडियम से होता है. सो लो फ्रीक्वेंसी होने के कारण हम बेसबैंड ट्रांसमिशन का वायरलेस ट्रांसमिशन या रेडियो ट्रांसमिशन नहीं कर सकते.
जैसा मैंने आपको बताया कि रेडियो ट्रांसमिशन करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी लगती है वो फ्रीक्वेंसी वॉइस सिग्नल की नहीं रहती है, उससे कम रहती है, इसलिए हम उसका रेडियो ट्रांसमिशन नहीं कर सकते। सो जो ट्रांसमिट बेसबैंड सिग्नल थ्रू ईयर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस मॉड्यूलेशन इज यूज। अगर हमें उस बेसबैंड सिग्नल को वायरलेस ट्रांसमिट करना है लॉन्ग डिस्टेंस पे, तो हमें मॉड्यूलेशन ये प्रोसेस यूज करना पड़ेगा। तो अब ये मॉड्यूलेशन प्रोसेस क्या रहती है ये हम अब देखने वाले हैं। सो नेक्स्ट इज बैंड पास ट्रांसमिशन। जैसे आपने बेसबैंड ट्रांसमिशन देखा, अब सेकंड है बैंड पास ट्रांसमिशन। अब बैंड पास ट्रांसमिशन क्या रहता है? इन बैंड पास ट्रांसमिशन लो फ्रीक्वेंसी बेसबैंड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हमेशा लो रहती है, जैसा हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखा। इन बेसबैंड ट्रांसमिशन लो फ्रीक्वेंसी बेसबैंड सिग्नल, उसको इनपुट सिग्नल भी बोलते हैं, इंफॉर्मेशन सिग्नल भी बोलते हैं, या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी बोलते हैं, बोथ हैव सेम मीनिंग। सो ये जो बेसबैंड ट्रांसमिशन है, उस बेसबैंड ट्रांसमिशन का जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल रहता है, उस लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को हम हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल के जरिए भेजते हैं और उस प्रोसेस को मॉड्यूलेशन बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, इन बैंड पास ट्रांसमिशन लो फ्रीक्वेंसी बेसबैंड सिग्नल इज ट्रांसमिटेड थ्रू हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलेशन टेक्निक। तो मॉड्यूलेशन टेक्निक का यूज करके हम लो फ्रीक्वेंसी बेसबैंड सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल पे इम्पोज करके हम उसे ट्रांसमिट करते हैं। सो हम लो फ्रीक्वेंसी का कन्वर्शन हाई फ्रीक्वेंसी में करके उसको ट्रांसमिट करते हैं, और उस ट्रांसमिट करने के लिए हम जो टेक्निक यूज करते हैं उस टेक्निक को मॉड्यूलेशन टेक्निक बोलते हैं। अब ये मॉड्यूलेशन टेक्निक क्या होती है हम ये नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सो व्हाट इज मॉड्यूलेशन? जैसा कि मैंने आपको बताया कि मॉड्यूलेशन इज नथिंग बट अ मॉडिफिकेशन और चेंज इन द गिवन सिग्नल। तो अब यहाँ पे देखो, इट इज द प्रोसेस, ये डेफिनेशन है मॉड्यूलेशन की, इट इज द प्रोसेस इन विच एनी वन पैरामीटर ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव सच एज एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज। जैसे कैरियर सिग्नल यहाँ पे सपोज हमने साइनोसॉइडल वेव लिया, तो उसको एम्पलीट्यूड रहता है, फ्रीक्वेंसी रहता है और फेज भी रहता है। सो इट इज द प्रोसेस, ये क्या है? ये प्रोसेस है। इट इज द प्रोसेस इन विच एनी वन पैरामीटर ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव सच एज एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज is varied in proportion with the instantaneous value of amplitude of modulating signal। अब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को बेसबैंड सिग्नल भी बोलते हैं और इन्फॉर्मेशन सिग्नल भी बोलते हैं, जैसा मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया। सो यहाँ पे क्या होता है, हम जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है मतलब बेसबैंड सिग्नल है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल है, उस इन्फॉर्मेशन सिग्नल के एम्पलीट्यूड की इंस्टेंटेनियस वैल्यू से हम हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल की जो पैरामीटर है, वो पैरामीटर फिर एम्पलीट्यूड हो सकती है, फ्रीक्वेंसी हो सकती है, फेज हो सकती है, उस पैरामीटर को हम चेंज करते हैं, और चेंज करते हैं मतलब मॉड्यूलेट करते हैं, और वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है वो हम ट्रांसमिट करते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, दिस इज द मॉड्यूलेशन। अब यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब ये मॉड्यूलेटर, दिस इज द सर्किट। ये मॉड्यूलेटर एक सर्किट है, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो सिग्नल पे मॉड्यूलेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो ये मॉड्यूलेटर सर्किट के लिए दो इनपुट रहते हैं, एक रहता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और दूसरा रहता है कैरियर सिग्नल, और उन दोनों का मॉड्यूलेशन होने के बाद जो हमें आउटपुट में सिग्नल मिलता है दैट इज कॉल्ड एज मॉड्यूलेटेड सिग्नल। सो ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या रहता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मतलब इट इज इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन सिग्नल। जो हमारा ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन सिग्नल रहता है वॉइस सिग्नल सपोज फॉर एग्जांपल, तो वॉइस सिग्नल का सपोज हम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसड्यूसर। अब यहाँ पे ट्रांसड्यूसर हम कौन सा यूज करते हैं, तो माइक्रोफोन। सो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन सिग्नल, इसको हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नेम्ड एज बेसबैंड सिग्नल, इनपुट सिग्नल और इन्फॉर्मेशन सिग्नल। सो कैरियर सिग्नल क्या रहता है, इट इज अ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव whose parameter will be changed according to the instantaneous amplitude of modulating signal। अब पैरामीटर किसके चेंज होने वाले हैं, तो कैरियर सिग्नल के पैरामीटर चेंज होने वाले हैं, और किसके अकॉर्डिंगली चेंज होने वाले हैं, तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के इंस्टेंटेनियस वैल्यू के अकॉर्डिंगली चेंज होने वाला है। सो इन दोनों का मॉड्यूलेशन होने के बाद हमें यहाँ पे मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलेगा। तो ये मॉड्यूलेटर क्या है, जैसा मैंने आपको बताया अभी कि इट इज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच परफॉर्म मॉड्यूलेशन ऑपरेशन ऑन गिवन कैरियर सिग्नल। सो इन दोनों का मॉड्यूलेशन होने के बाद मतलब ये जो हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल है, उस कैरियर सिग्नल का पैरामीटर चेंज होने के बाद
हमें जो सिग्नल मिलेगा वो मिलेगा मॉड्यूलेटेड सिग्नल, और उस मॉड्यूलेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ये कैरियर सिग्नल के फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली डेविएट होंगी। तो ये हम बाद में आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। सो नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे एक इमेज आपको दिख रही है। मॉड्यूलेशन की कंसेप्ट यहाँ से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे ये कार है, इस कार में आदमी बैठा है, और ये बाइक है, बाइक पे कोई आदमी बैठा है। तो ये कार या ये बाइक, दीज आर नथिंग बट अ कैरियर सिग्नल, और इसमें जो आदमी है दैट इज सपोज इंफॉर्मेशन सिग्नल। सो ये जो कार और ये बाइक है वो उस आदमी को कैरी कर रही है। तो एक्चुअल हमारी इंफॉर्मेशन क्या है, वो आदमी, इट इज एनालॉगस। ये इंफॉर्मेशन सिग्नल मतलब ये आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है कार पे या बाइक पे, और जो बाइक है वो कैरियर सिग्नल हो, वो कैरियर सिग्नल इंफॉर्मेशन सिग्नल को कैरी करती है। सो दिस इज द एनालॉगस एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द मॉड्यूलेशन। So carrier signal have no information. Carrier signal do not have any information. It just used to carry the information signal. जिस information signal की frequency कम रहती है तो हम उसे as it is भेजने से बहुत सारे limitations आते हैं, इसीलिए हम उस information signal को, मतलब low frequency signal को एक high frequency carrier signal पे क्या करते हैं, carry करते हैं। अब जैसे हमें दूर जाना है तो हम बाइक या गाड़ी पे जल्दी से हम ट्रैवल कर सकते हैं, या कम समय में हम ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। और अगर हम अकेले गए, सपोज ये आदमी चलते चलते गया, तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर सकता। अगर बाइक से गया तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकता है। तो कैरियर सिग्नल लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने के लिए यूज़ करते हैं। सो लो फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन सिग्नल को कैरी करने के लिए हम यूज़ करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल। सो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। अब इस मॉड्यूलेशन के कौन से टाइप्स है। So modulation is broadly classified into two types, that is a continuous wave modulation, that is called as analog modulation, और दूसरा है pulse modulation। तो continuous wave modulation में तीन टाइप्स रहते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मतलब जिसमें कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज होता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के इंस्टेंटेनियस वैल्यू के अकॉर्डिंगली, और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, और फेज मॉड्यूलेशन में कैरियर वेव की फेज चेंज होती है। और ये जो पल्स मॉड्यूलेशन है, इस पल्स मॉड्यूलेशन में जो कैरियर सिग्नल होती है वो पल्स नेचर की होती है। जैसे कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन में कैरियर सिग्नल ये कंटिन्यूस होती है, मतलब साइनोसाइडल होती है, और जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो भी एनालॉगी होती है। और पल्स मॉड्यूलेशन में हमारे जो इनपुट मतलब इंफॉर्मेशन सिग्नल है, मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो है वो एनालॉग नेचर का होता है, और ये जो कैरियर सिग्नल होता है वो पल्स नेचर का होता है। तो इसके दो टाइप से एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन और डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन। अब एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन के दो टाइप है, PAM, PWM और PPM। PAM मतलब पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, PWM मतलब पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, PPM मतलब पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। और डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन के भी तीन टाइप से, PCM, DM और ADM। PCM मतलब पल्स कोड मॉड्यूलेशन, DM मतलब डेल्टा मॉड्यूलेशन, और ADM मतलब एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन। अब इस सब की स्टडी हम आने वाले सेक्शन में 1 बाय 1 सबकी स्टडी करेंगे। सो नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन इन मॉड्यूलेशन प्रोसेस। सो मॉड्यूलेशन प्रोसेस में जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी इंफॉर्मेशन सिग्नल रहती है उसकी फ्रीक्वेंसी कम रहती है, तो उस कम फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को हमें हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल पे इम्पोज करके ट्रांसमिट करने होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को कैरियर सिग्नल पे इम्पोज करके भेजते हैं। और कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हाई रहती है, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है पर उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहती है, तो हमें लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी में ट्रांसलेट करना होता है। तो यहाँ पे द बेस बैंड दैट इज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, फॉर एग्जाम्पल ऑडियो सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज रहती है। So due to modulation, the same signal is translated to a new frequency, जैसे AIR FM is tuned at 101 megahertz and AM is 792 kilohertz for पुणे स्टेशन। तो इसमें क्या होता है, हमारी जो वॉइस सिग्नल होती है, ऑडियो सिग्नल होती है, उसको इस कैरियर सिग्नल में मॉड्यूलेट करके उसको ब्रॉडकास्ट किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन मॉड्यूलेशन प्रोसेस। सो द रिमेनिंग पार्ट of this topic we will discuss in next video. So thank you.